A very good morning, students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Deviras Saraswati Vidya Mandir. Students, today I am going to tell you the story of Events Rise and O-Level Exam, which has been taken from the book Vistas of Class 12. Firstly, I'll tell you about the author of this chapter, who is the writer of this story. He is Norman Colin Dexter, who was born in 29th 1930, okay, September 29th 1930, Stafford, United Kingdom. He was born in Stamford, which is in United Kingdom, and he was a crime writer. And this story is written on a criminal, and though he is not a very big criminal, but his stories are always based on crimes. So firstly, I will tell you about the O-level exam. What is an O-level exam? So, who is the hero of this chapter? Evans. He is an extraordinary and clever person. And what is an O-level exam? There are three types of O-level level exams. First, O-level, which is an ordinary level, the lowest of levels of standardized British exam in a secondary school subject, which is the lowest, okay. And before it there is a level exam. A means advanced level, and S level means scholarship level exams, and O is the ordinary exam. So in this chapter, the hero of this chapter, who is Evans, he is the criminal also, who is a prisoner of Oxford prison. So he attended this exam. This was the part of his planning. This is very interesting, student, like a movie. This is full of suspense. If you will listen it and read it attentively, then you will be able to understand the story of this chapter. What is the theme of this chapter? आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे स्टोरी को. अदरवाइज अगर आपने खुद पढ़ी तो आपको स्टोरी समझ नहीं आ पाएगी. उसके लिए बहुत ज़्यादा माइंड को आपको अलर्ट रखना होगा. And this story is written in the third person of view and author's points of view. We will see what is the story of this chapter and how many people are in this story. Firstly, I will tell you about the main characters of this chapter. First one is the secretary of the examination. This story begins with the conversation of the secretary of the examination board and the governor of HM Prison, Oxford. Evans is also James. The full name of Evans is James Roderick Evans. He is the prisoner of the same prison, HM Prison, Oxford. So with the conversation of these two persons, this story starts, and about whom the conversation was the James Roderick Evans. He wanted to give the exam of O-level, which I have told before. So now next one is German teacher. Evans German teacher. Who is German teacher? So-called German teacher. According this story, according to the plan of Evans के according जो German teacher है from so-called technical college, prison record के हिसाब से जो वहाँ की HM prison है उसके record के हिसाब से he is the so-called technical from technical college. Actually this is his accomplice. Accomplice means he is the part of group of Evans. Evans का एक group है जो कि उसमें शामिल है, प्लान में शामिल है. वो एक योजना बनाता है to escape from the jail. So this one is also German teacher, is also the part of his plan. Now next one is Jackson. Jackson is a senior prison officer of the same prison, okay. And sixth character is Stephens. Stephens is also the prison officer. He is junior prison officer who is newly appointed in the prison. And the other one is Reverend Stuart McClary. Reverend Stuart McClary is the invigilator of the exam. So he is a parson who is from St. Mary Mike's Church as invigilator in conducting
exam. So he was called for conducting the exam as a invigilator in this story. ये characters जो अभी बताया, अभी इसके बाद और भी characters हैं. तो first one secretary of the prison, second governor of the prison, and Evans, he is the main character of this chapter. The whole story around revolves around this character Evans. Okay, Jackson and Stephens are the prison officers who are in the safe security of Evans during the exam. Okay, and Reverend Stuart McClary is an invigilator, who is a parson who came from the church, and Mr. Carter, who is a detective officer, superintendent, chief inspector Bell from St. Adler's police station. These two characters are summoned by governor when so-called Evans escaped from the prison. जब वो जेल से भाग जाता है, so-called मतलब उस समय जो फैली थी खबर, न्यूज़, वो ये थी कि Evans जेल से भाग गया. तो उसको पकड़ने के लिए इस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से, सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन से कार्टर, जो कि सुपरिंटेंडेंट है, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, एंड चीफ इंस्पेक्टर वाज समन्ड बाय गवर्नर के द्वारा इनको बुलाया गया. एंड अदर इज Evans accomplice acting as McClary. So Evans did the acting like a McClary when he was in the prison. जब वो prison में था, उसने McClary की acting की थी to confuse the prison officers and governor. So and also as a driver of prison van, the same one, Evans is the McClary in the form of McClary when he is in prison. And he was also the driver of the prison van, having broad Scotch accent, means he always used Scottish language. And next one is Evans accomplished pretty blonde receptionist in Golden Lion Hotel. मतलब ये सब जो है बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो Evans के ग्रुप के मेंबर्स हैं. Accomplish क्या होता है? When we make a group of some people for murder or to do any crime like escape from the jail. So the blonde receptionist who is in Golden Lion Hotel, he was also the part of his group. Evans accomplished acting as silent prison officer, and he also did the and silent officer who came at the end of the story. He was also the part of his group. So-called assistant secretary and assistant secretary, there was a call after starting the examination that he was also the part of his group. Good morning students, I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Now in this video I will tell you about about Evans, how did he look, and Evans no serious criminal record. When secretary of the examination board and the governor of prison were talking about Evans, then governor told about Evans what kind of boy is he, lad is he. No serious criminal record means there is no serious record of Evans in the prison. Commercial kleptomaniac, वो जो है by birth he is used to small thieveries, means वो जन्मजात छोटी छोटी चोरी का आदी है, मतलब उसे चोरी करने की आदत है जिसकी वजह से वो जेल में है. And pleasant sort of chap, and according to the governor he is a pleasant sort of chap means boy. वो एक मतलब बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति है. He always entertained he always entertained to the people in the church. And Jackson called him Einstein, little Einstein. Stephens called him mathematician, means he is very clever and intelligent also. His mind does work like a scientist and mathematicians. You will see during the story. So, and who are the member of his plan? In his group, who are the members of in his group? So called German teacher. At the starting I told you that who is a German teacher.
German teacher who came into the prison to teach him German. Extra classes was brought by German teacher who is coming from a technical college according to the record of governor. And man with broad Scotch accent impersonating as McClary, and other one is the McClary who came into the jail, into the prison as a invigilator. He was also a fake McClary. He was not real McClary, and he was a fake McClary. This was the man of his group, and who came from Parson from St. Mary Marks acting as invigilator. मीन्स उसने इन्विजिलेटर की एक्टिंग की थी, ना केवल इन्विजिलेटर की, ही वॉज ऑल्सो द ड्राइवर ऑफ प्रिजन वैन इवेंस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. उस समय जो ड्राइवर का रोल किया था वो भी सेम पर्सन ने किया था जो मैक्लरी बन के आया है, प्रेटी ब्लोन. और जो होटल में लास्ट में होटल में जो रिसेप्शनिस्ट थी, सी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ हिज प्लान ऑफ हिज ग्रुप. वो भी उसी के ग्रुप की मेंबर थी, इवेंट्स के, ना गवर्नर के नहीं बल्कि इवेंट्स की प्लानिंग का ही पार्ट थी. मैन एक्टिंग एज साइलेंट प्रिजन. और लास्ट में जो वैन में जो व्यक्ति था, जो वैन के अंदर बैठा हुआ था, जिसने की प्रिजन साइलेंट प्रिजन ऑफिसर की एक्टिंग की थी, ही वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ इवेंट्स. वो भी इवेंट्स का ही आदमी था. मतलब उसको जेल से भगाने में जितने लोगों का हाथ था, उसके ग्रुप में जितने मेंबर्स थे, उन सबका डिस्क्रिप्शन अभी मैंने आपको बताया है. ये आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आने वाली नहीं है. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट रिसेप्शनिस्ट. शी इज द रिसेप्शनिस्ट हु इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी. Okay, and these are Jackson and Stephens. Jackson, who is a senior prison officer, you can see by look he also is looking like a senior officer who is an experienced person in the prison. So displays Second World War medals on his chest. You can see the medals on his chest, means he was and tiny course of comparison in heart, and he is also very kind person. He has a soft corner regarding events in his heart. How he was very soft hearted we will see during the story of this chapter. And senior prison officer on the D-wing in HM Oxford prison. prison में बहुत बड़ी prison होती है, उसमें अलग अलग blocks होते हैं. तो ये D-wing जो था उसका officer था. There are a lot of prison officers, and Jackson and Stephens were the prison officer of the D-wing in HM Oxford prison. He was warm enemy with Evans, and Jackson were warm enemy to each other. वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु थे, क्योंकि he was a prison officer, a senior prison officer. Still he has soft corner regarding Evans. उसके बावजूद भी उसके अंदर, और Evans भी ये जानता था कि जैक्सन जो है वो कहीं ना कहीं उसके प्रति बहुत सॉफ्ट है. तो ही ऑल्सो टेक परमिशन ऑफ हैविंग कैप विद हिम. एंड नेक्स्ट इज स्टीफेंस. मिस्टर स्टीफेंस हु इज जूनियर प्रिजन ऑफिसर, न्यूली recruited, means he is newly appointed, and burly surely looking, and he looks smart according to his age. And next and last one is governor, who is the governor of prison officer. At this story starts with the conversation of this person, and he is good for a gullible governor. हंसी का पात्र बनता है इवेंट्स के द्वारा. मीन्स इवेंट्स उसको हर बार चकमा दे जाता है. इवेंट्स यहाँ पर प्रूव कर देता है कि एक क्रिमिनल जो है किसी भी ट्रेंड ऑफिसर से ज़्यादा चालाक हो सकता है. So thank you students. This was the second part of this story. I will tell you about it in the next video. Hello students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devrat Saraswati Vidya Mandir. In this video, I am going to tell you about the places of the story. So first is HM prison, which is in Oxford. Okay, events cell in HM prison of Oxford.
इवेंट्स की सेल जिसमें कि इवेंट्स रहता है, सेल एक स्मॉल रूम वेयर इवेंट्स स्टे विच इज इन ऑल्सो इन प्रिजन HM prison Oxford. Elsfield Way where events board is, and Elsfield Way is the place where the examination board situated. Radcliffe Hospital where injured McClary is to be taken in ambulance. Radcliffe is the hospital, though Evans did not go there, but he was brought by a van, by prison van in the nearby that hospital. बट वो वहाँ पहुँचता नहीं, उसके आसपास उसको किसी स्पॉट पर छोड़ा जाता है जहाँ से जो वो है एम्बुलेंस उसको लेने आती, लेकिन वो उनको नहीं मिला। तो ये जो प्लेसेस हैं जो इस स्टोरी में डिस्क्राइब हुए हैं। नेक्स्ट इज न्यूबरी। न्यूबरी वेयर इवेंट्स इज सपोज टू बी एस्केप्ड। ये इमेजिन किया गया था अकॉर्डिंग टू द करेक्शन स्लिप। इसमें एक करेक्शन स्लिप थी जिसमें मिसगाइड किया गया था गवर्नर को, प्रिजन ऑफिसर्स को, कि इवेंट्स जो है भागकर कहाँ जाएगा, न्यूबरी जाएगा। सो मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्दर्न वेयर होटल गोल्डन लायन, एंड नेक्स्ट इज जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है होटल गोल्डन लायन, जो जहां पर कि लास्ट में भागकर इवेंट्स जाता है। ये कहां पर है, चिपिंग नॉर्दर्न में, और ये भी करेक्शन स्लिप के द्वारा पता चला था। उसके बाद प्लॉट सीक्वेंस इवेंट्स, किस तरीके से अब इसकी प्लॉटिंग हुई थी, ये जो प्लान किया गया था वो कैसे हुआ था। सबसे पहले उनका एग्जाम फिक्स किया गया, एग्जाम फिक्स्ड गवर्नर के द्वारा, और जो बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड की सेक्रेटरी थी उनके द्वारा इस एग्जाम को फिक्स किया गया। गवर्नर ने परमिशन ली, क्या हम एग्जाम दिला सकते हैं उस को, तो उसने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने के बाद जो सेक्रेटरी था उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने कहा कि हम जो डॉक्यूमेंटल वो है वो सब हम आप अरेंज करेंगे, आप उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए अपनी जेल में, और आप उसके लिए मतलब इन्विजिलेटर का इंतजाम कीजिए। इवेंट सेल टर्न इनटू एग्जाम सेंटर। तो प्रिजन ऑफिसर जो थे और गवर्नर ने डिसाइड किया कि उसका एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, इन द सेल ऑफ इवेंट्स हिज ओन सेल, उसकी ही खुद की सेल में ही उस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। एंड हु वाज द इन्विजिलेटर ऑफ दैट एग्जाम, इवेंट्स कंडक्टेड इवेंट्स मैक्लरी was the invigilator of his exam. Then Evans escaped, and after finishing the exam he escaped, and in reality Evans was not escaped. जब कहानी ये स्टार्ट होती है और जहाँ से इसकी एस्केपिंग दिखाई गई है, इन रियलिटी इवेंट्स नहीं भागा था, यहाँ पर सिर्फ मिसगाइड किया गया था इवेंट्स को। उसको मतलब ब्लड से पूरा उसमें एकदम सारा उसके ऊपर ब्लड पोर किया गया था, सो दैट नबडी कैन रिकॉग्नाइज हिम हु इज दिस वन, एंड ऑल ऑफ देम एज्यूम दैट ही इज मैक्लरी। सबने उसको क्या सोचा, एज्यूम कर रहे थे कि मैक्लरी है, एंड इवेंट्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। Alert sounded, police comes into action, and when it has been confirmed that Evans has escaped from the jail, then there was you can see imagine in movies में जब कोई प्रिजनर भाग जाता है जेल से तो वहाँ का क्या सीन होता है, जेल का चारों तरफ जो है सायरन बजने लगते हैं और सब लोग इधर से उधर दौड़ने लगते हैं, ऑफिसर्स जितने हैं कॉल होती हैं, और जेल में जितने भी वो होते हैं सेल्स उनको बंद कर दिया जाता है, लॉक कर कैदियों को अंदर करके उनको लॉक कर दिया जाता है। ठीक वही सिचुएशन उस समय थी। गवर्नर कैचेज इवेंट्स इन गोल्डन लायन होटल, और फाइनली जो है गवर्नर जो है उसको जो भी क्लूज मिलते हैं उसके आधार पर वो उसको गोल्डन लायन होटल में उसको अरेस्ट कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है, अरेस्ट नहीं करता, वहाँ उसको पहुँच जाता है। उसके पहले क्या हुआ था वो हम स्टोरी में बताएंगे। इवेंट्स एस्केप्स अगेन इन प्रिजन वैन विद द हेल्प ऑफ हिज एक्कम्प्लिस, और लास्ट में फिर से इवेंट्स भाग जाता है। मतलब सबसे पहले इवेंट्स, इस स्टोरी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये न्यूज़ फैलती है कि इवेंट्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, इन रियलिटी इवेंट्स वॉज नॉट एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, मैक्लरी वेंट आउट ऑफ द प्रिजन, नॉट इवेंट्स। बट ये सारी जो कन्फ्यूज़न था क्रिएट किया गया था खुद मैक्लरी और इवेंट्स के द्वारा, क्योंकि
ड्यूरिंग द एग्जाम के दौरान इवेंस ने अपने आप को मैक्लरी के रूप में, मतलब उसने अपना मैक्लरी का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि जब एग्जाम हो रहा था उस बीच उसने ब्लैंकेट की डिमांड की थी। ब्लैंकेट को उसने अपने आप को कवर कर लिया था ताकि वो अंदर कपड़े चेंज कर सके सॉरी। और साथ में उसने फेक मतलब बियर्ड का यूज किया, फॉल्स बियर्ड थी उसके पास, स्पेक्स थे, वो सारी उसने तैयारी उस प्रिजन के अंदर ही की ड्यूरिंग द एग्जाम। दो स्टीफन्स वॉज ऑन ड्यूटी, ही वॉज आउट ऑफ द सेल, बट ही हैज़ ऑल्सो डाउट्स, उसको बहुत जगह डाउट्स भी हुआ कि उसने ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है या वो एक ही कंडीशन में क्यों था। मैक्लरी को भी वो जब भी पीप होल से अंदर झांक कर देखता था वो दोनों को सेम कंडीशन में देखता था। इवेंट्स कैसे होता था, उसके मुंह में पैन होता था और वो छत की तरफ देख रहा होता था, और मैक्लरी का राइट हैंड कॉलर पे होता था और लेफ्ट हैंड उसकी बियर्ड पर होता था। इट मीन्स वो क्या कर रहा था, मैक्लरी अपने साथ एक ओवरकोट, एक्स्ट्रा ओवरकोट पहनकर आया था, डॉग कॉलर, यानी एक एक्स्ट्रा कॉलर होता है जो ऊपर से स्टिच किया जाता है, कॉलर था, एक्स्ट्रा गॉगल्स थे उसके पास, और फॉल्स उसकी बियर्ड थी। तो वो तैयारी जो थी उसके अंदर चल रही थी। सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, या इस स्टोरी में हमें ये मतलब शिक्षा मिलती, मोरल, कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नर और जो प्रिजन ऑफिसर थे वो अपनी सिक्योरिटी पर ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें था कि उनकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उससे इवेंट्स नहीं भाग सकता। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमीज, और कभी भी अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट मत करो और अपने से कमजोर कभी मत समझो। सो बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट, यहाँ पर जो युद्ध था वो क्राइम के बीच में और पनिशमेंट के बीच में था, एक बुद्धिमान जो चोर था उसके बीच में था। हिस्ट्री कंक्लूजन ब्लर्स क्लियर थिंकिंग एविडेंस फैक्ट्स, हाउ द प्रिजनर आउट स्मार्ट्स द प्रिजन अथॉरिटी, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। इसमें बताया कि जो प्रिजन गवर्नर जो था, गवर्नर को भी, मतलब इस स्टोरी में जहाँ जहाँ सस्पेंस हुआ, जहाँ जहाँ इवेंट्स ने कोशिश की चालाकी चलने की, उन सबको उस जगह डाउट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी ना तो गवर्नर ने वहाँ क्लैरिफिकेशन किया, मतलब अपनी बात को क्लियर किया जहाँ उसको डाउट हुआ था, ना स्टीफन्स ने और ना ही जैक्सन ने। इस चीज़ के लिए हमें डीपली चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अगर हम मतलब ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि गवर्नर को कहाँ पर शक हुआ था, स्टीफन्स और जैक्सन को कहाँ पर शक हुआ था कि जो ये काम गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं ढूंढा उसमें, वो उनकी गलती रही है। चलिए, एग्जामिनेशन, जर्मन ओ लेवल एग्जाम डे, एग्जाम फिक्स्ड, कब, अभी एग्जाम कब फिक्स किया गया था, ट्यूसडे 8 जून को डेट फिक्स हुई थी, टाइम था 9:15 से 10:15 तक, ओके, जो कि 10 मिनट्स लेट हो चुका था। एंड वेन्यू था इवेंट्स सेल, कैंडिडेट कौन था, सिर्फ सिंगल जेम्स था, जो जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स था वो सिंगल कैंडिडेट था इस एग्जाम का, और उसके जो इन्विजिलेटर थे पार्सन थे, मैक्लरी फ्रॉम सेंट मैरी मैक्सिम को बुलाया गया था। प्रिपरेशन और उसके लिए तैयारी क्या की गई थी, गॉट इंडिविजुअल ट्यूशंस फ्रॉम, मतलब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, गवर्नर के अकॉर्डिंग, जो इवेंट्स था वो पिछले कुछ महीनों से जर्मन क्लासेस ले रहा था, जिसके लिए जर्मन टीचर उसको अंदर जेल के अंदर पढ़ाने आता था सिंस लास्ट सितंबर से, और नाइट क्लासेस लेता था। और एग्जाम कब स्टार्ट हुआ है, जून में स्टार्ट हुआ, तो सितंबर से जून तक उसने लगातार क्लासेस ली, ये गवर्नर के अकॉर्डिंग। बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट टेकिंग जर्मन क्लासेस, ही वॉज मेकिंग अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड स्पॉन्सर्ड बाय HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड अथॉरिटीज। ये जो पूरा एग्जाम है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ की जो अथॉरिटीज थी HM प्रिजन की। इवेंट्स का मैनिपुलेटर, इवेंट्स मेकअप मटेरियल ब्रॉड बाय, इवेंट्स के हिज एक्म्प्लिस, इवेंट्स के ग्रुप में क्या क्या चीज़ें थी उसको मेक ओवर करने के लिए, जब वो जेल से भागा है, मतलब भागा कौन था, इवेंट्स नहीं भागा था, मैक्लरी भागा था, ये कहानी के एंड तक आपको ध्यान रखना है। तो उसने अपनी इस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, फॉल्स बियर्ड, एक नकली दाढ़ी थी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स,
अ डॉग कॉलर एक नकली कॉलर जो कि ऊपर से लगाया जाता है। अ स्टिकिंग प्लास्टर जो दाढ़ी को, फॉल्स बियर्ड को स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए यूज किया गया। अ डॉग कॉलर, ओके, एंड क्लरिकल पैराफेरनेलिया, और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, ये उसकी योजना का एक पार्ट था। मैं आपको इसी के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे, देखिए जो मैक्लरी है, मैक्लरी तो वो जिसका जो लुकअप है, तो ये मैक्लरी इन रियलिटी में वो कौन था, वो जर्मन टीचर जो क्लास लेने आया करता था, और उसने जो रियल मैक्लरी था उसको उसकी चर्च में ही उसके स्टडी रूम में बांध कर डाल दिया था, और उसके रूप में खुद स्पेक्स वगैरह लगाकर, ओवरकोट पहनकर वो प्रिजन में आ गया। तो जब वो गया है तो उसने मतलब एक जो एक्स्ट्रा कोट पहन कर आया था इवेंट्स को दे दिया, फॉल्स बियर्ड जो लगा कर आया था, उसकी खुद की तो बियर्ड थी, उसने दूसरी बियर्ड जो थी वो किसको दे दी, इवेंट्स को। अब दो मैक्लरी एक साथ कैसे हो सकते हैं, देखो उसमें बाहर जाने के लिए इवेंट्स अपने असली रूप में जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो मैक्लरी रियल मैक्लरी ही बाहर गया है, अंदर जो है इवेंट्स उसने मैक्लरी का रूप धारण कर लिया, ताकि सब लोगों को ये कंफ्यूजन रहे कि इवेंट्स जो है मैक्लरी को मारकर उसको घायल करके वो जेल से भाग गया। तो ये सारी चीजें उसने यूज की थी। ओके, थिंग्स वी मैनेज प्रोवाइडेड विद, और उससे जो चीजें ली गई, जब एग्जाम शुरू हो रहा था उससे पहले गवर्नर ने जैक्सन को जो ऑर्डर दिए थे कि उसकी सेल को अच्छे से चेक किया जाए कि उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो, कोई ऐसी चीज जिससे वो दूसरे को मतलब इन्विजिलेटर को नुकसान पहुंचा सके अपने भागने के लिए। तो वो थे रेजर ब्लेड, ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, अच्छा जो उसको पार्ट थे जिसने उसकी हेल्प करी है, उसको बाल वगैरह कटिंग करने में, उसने रेजर तो वापस कर दिया लेकिन उसका एक ब्लेड अपने पास रख लिया, जिससे उसने अपने बालों की कटिंग की, मतलब कटिंग किया कि उसको बहुत ही रफ तरीके से उनको काटा। ब्लेड से कितना हार्ड है ये आप भी जान सकते हैं। उसको पूरी रात लग गई अपने बाल किसकी तरह काटने में, मैक्लरी जैसे अपने बालों को काटने में, ब्लेड से सिर्फ। और ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट स्टोरी जब ये कहाँ एग्जाम हो रहा था तो उसने बीच में जून के मंथ में उसने ब्लैंकेट की डिमांड की थी। स्टीफन्स को शक हुआ था, लेकिन उसने इस बात को ये सोचा कि ये सेल जो है कॉर्नर में है, कभी सनलाइट नहीं आती, तो हो सकता है थोड़ी सी ठंड हो, उसने ब्लैंकेट मांगा हो। पर उसने ब्लैंकेट क्यों लिया था, ताकि वो ब्लैंकेट के अंदर अपना मतलब मेकओवर कर सके, अपनी ड्रेस चेंज कर सके। फिल्दी लुकिंग रेड व्हाइट, अभी एक आपको पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए, ये आपको रेड कलर की आपको एक कैप दिखाई दे रही है जिसमें कि इसके पूरे बाल बिल्कुल कवर अप हैं। हालांकि एग्जाम से पहले जैक्सन ने इवेंट्स से कहा था कि वो अपनी एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम अपनी जो कैप है उसको हटा दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने उसके बाल बहुत लंबे थे, तो उसने अपने बालों को मैक्लरी की जैसे बनाया था, तो अब उनको कवर कर लिया। उसने परमिशन मांग ली एज अ लकी चैम बोलकर उसको कि वो उसके लिए लकी चैम है, तो उसको एक इसकी परमिशन दे दे लगाने की। तो अपने बालों को छिपाने के लिए उसने इस कैप का यूज किया था। तो ये सारी चीजें थी जो मैक्लरी की जेल से भागने में मदद करती हैं। बाकी का हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी गहलोत, PGT English from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to continue the chapter Events Tries an O level from Vistas of class 12th. So now I am coming to the end of the chapter. This is very lengthy chapter and very typical, and is very typical to understand what is happening in this chapter. So I am telling you one by one in points. Okay, so now what happened today, I'll tell you what happened and at 10:45 AM during the examination. Before the ending of the examination, what was happening at 10:45 AM on the day of the exam, same day, Stephens looks through peephole at 1 minute intervals, found Evans having pen between his lips, starting when this was the duty of Stephens to keep eyes on Evans and McClary. So whenever he peeped into the hole, what did he notice? He noticed that Evans having pen.
between his lips, staring. He always found him staring at the roof and his pen in his lips. So at 10:50, again after 5 minutes later, what did he notice? Governor overhears Evans seeking permission from invigilator to put on grey regulation blanket around his shoulders. Means now whenever there was any conversation in the cell, the speaker of the governor क्रैकल्ड. जैसे ही सेल में कोई भी जरा भी बातचीत होती थी, उसकी स्पीकर में आवाज गूंजने लगती थी, एकदम से क्रैक हो जाता था गवर्नर का. तो गवर्नर ने सुना 10:50 पर उसकी इवेंस को डिमांड करते हुए एक ब्लैंकेट के लिए. इवेंस ने मैक्लरी से कहा कि अगर उनको कोई ऐतराज ना हो, इफ ही डोंट माइंड, कैन ही गिव हिम द ब्लैंकेट, क्या वो उनको एक ब्लैंकेट दे सकते हैं या उसके शोल्डर पर, उसके कंधों पर डाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, उन्होंने इवेंस ने ये ब्लैंकेट क्यों मांगा? वाइल दिस एग्जाम वाज ऑन जून, इन द मंथ ऑफ द जून के मंथ में था. उस समय ब्लैंकेट की तो विंटर होता ही नहीं, इतनी सर्दी होती नहीं है. सो व्हेन Stephens, and this was the peephole, you can see from where Stephens peeped out. कहाँ से Stephens झांक कर देखता था? सेल के अंदर, क्योंकि उसे सेल से बाहर भेज दिया गया था. Stephens की जो ड्यूटी थी वो सेल के अंदर थी. लेकिन इवेंस ने मैक्लरी से कहा था कि अगर ये अंदर रहे, स्टीफेंस जो है जूनियर प्रिजन ऑफिसर, अगर वो जेल के इसके सेल के अंदर रहा तो ही विल नॉट बी कंसंट्रेट ऑन हिज पेपर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने पेपर पर. और ये बात गवर्नर ने स्पीकर पर सुन ली थी और उसने जैक्सन को ऑर्डर दिया कि स्टीफेंस को सेल से बाहर निकाल लो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. रूल इज रूल. सो व्हाई डिड ही Evans wanted that Stephen should go out of the cell because he want to change his clause, he want to come in the form of McClary, क्योंकि वो सेल के अंदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कुछ प्लानिंग कर रहा था. वो मैक्लरी की तरह अपने आप को ड्रेसअप कर रहा था. दैट्स वाई ही ऑल्सो डिमांडेड फॉर ब्लैंकेट. ब्लैंकेट को उसने क्यों मांगा? क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर उसने मैक्लरी का जो ओवरकोट, जैसे मैक्लरी आया था प्रिजन के अंदर, ठीक उसने 2 ओवरकोट पहने हुए थे. तो एक ओवरकोट जो है वो मैक्लरी को इवेंस को देता है, जिसे वो ब्लैंकेट के अंदर चेंज करता है. ओके, सो दिस वाज द पीप होल फ्रॉम वेयर स्टीफेंस लुक्ड आउट ऑफ द look into the cell. And whenever he looked into the cell, whenever he peeped through the peephole, he always found Evans cell sitting having pen between his lips. उसको सिर्फ एक he did never write on the paper and nothing else, only keep his pen in his lips and stare at the door side. Now what happened at 10:51 a.m.? Just after 1 minute, what did Stephen notice? He noticed Stephen sees Evans' blanket is still staring. He's noticed the blanket over the shoulders of Evans. स्टीफेंस को मतलब नोटिस करता है और वो सोचता भी, क्योंकि जैक्सन ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अगर उसको कुछ ऑड लगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जैक्सन को दे, सो दैट जैक्सन कुड इन्फॉर्म टू द गवर्नर. But Stephen did not inform him because he thought that this cell is in the corner of the prison where the sun rays never come. So maybe possible that there will be some coolness in the cell. हो सकता है कुछ ठंडी हो वहाँ पर, चिल हो, इसीलिए उसको ब्लैंकेट की ज़रूरत हो. और वो उसको मतलब वहाँ पर उसको डाउट था, बट उसने वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर नहीं किया और अपने आप को समझा लिया रीजन देकर. ओके, सो नाउ at 11:20 a.m. what happened at 11:20 a.m. 11:20 पर the time of the examination ending of the time was 11:25 due to become late.
So, क्या होता है, द रिसीवर क्रैकल, फिर से रिसीवर में क्रैकल की आवाज, एकदम से रिसीवर बजने लगता है गवर्नर के ऑफिस का। और उसने क्या सुना, गवर्नर चेम्बर मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवेंस दैट ओनली 5 minutes आर लेफ्ट। एज यू ऑल्सो have seen in your 10th class that before the end of the exam, before 5 minutes there become a bell, एक warning bell होती है जो कि आपको warn करती है 5 minutes are only 5 minutes are left for preparation for arranging the sheets. Okay, so ये रिसीवर के द्वारा, रिसीवर से गवर्नर मैक्लरी की इंस्ट्रक्शंस को सुनता है। सो नाउ व्हाट हैपन, नाउ एट 11:20 AM, 11:22 पर क्या होता है, जैक्सन शाउटेड 3 मिनट पहले, जस्ट बिफोर द 3 minutes ऑफ द एग्जामिनेशन एंडिंग, एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले गवर्नर की कॉल आती है जैक्सन के पास कि उसे स्टीफन से बात करनी है। स्टीफन सेल के पास बाहर से जो उस पर नजर रख रहा था इवेंट्स पर, वो बाहर निकल कर आता है। ठीक है, सॉरी, वहां से गेट से अलग होता है, सेल के पास से फोन रिसीव करता है और फोन पर गवर्नर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ही विल ड्रॉप मैक्लरी टू द गेट। हु विल ड्रॉप, इवेंट्स, सॉरी, Stephens, junior prison officer Stephens will drop McClary to the gate of the prison after completing the exam. Okay, while this was the duty of Jackson, because Jackson was a senior officer, he also picked him up from the gate and this was the duty to drop him off to the gate. But this was the order of governor to Stephens. In reality, this was not the call of governor of the prison officer, this was a fake call. वास्तविकता ये थी कि ये जो कॉल थी फेक थी, यानी किसके, इवेंट्स के ही किसी व्यक्ति की थी, इसके ग्रुप के ही किसी व्यक्ति ने कॉल की थी। स्टीफन्स को इसलिए मैक्लरी के साथ जाने के लिए कहा गया था क्योंकि स्टीफन्स जो था जूनियर प्रिजन ऑफिसर था और वो उतनी बारीकी से चीज़ों को ध्यान नहीं देता जितने की शायद जैक्सन देता। So the governor heard the final exchange between McClary और 11:25 पर, 11:22 पर कॉल थी, 11:25 पर गवर्नर को रिसीवर से मतलब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कॉपी, हालांकि एक ही स्टूडेंट था तो उसकी कॉपी कलेक्ट करने, पेपर्स के शफलिंग की आवाज़ उसको सुनाई देती है। द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज बिटवीन मैक्लरी एंड इवांस, एग्जामिनेशन ओवर, मीन्स कन्फर्म हो जाता है कि एग्जामिनेशन हैज़ बीन ओवर। So when did the examination over? At 10:25. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊं कि जो सूटकेस था उसमें मैंने एक चीज बात को बताना भूल गई, सूटकेस के अंदर एक रबर रिंग था। रबर रिंग के बारे में जब जैक्सन ने पूछा था, क्योंकि वो उसको कुछ ऑड लगा, उसने पूछा जैक्सन ने मैक्लरी से कि आप यहाँ से स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं, तो जैक्सन मैक्लरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि नहीं, ये जो रबर ट्यूब मैं इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज ऑफ पाइल्स एंड शी वॉज अनेबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई ही यूज दैट रबर रिंग, while it is not allowed during the examination to any person. Such types of things are not allowed, but Jackson was not aware with the rules and regulation of the examination. That's why he gave him permission, या he accepted his excuse. उसको excuse को वो स्वीकार कर लेता है या मान लेता है और उसको डीपली नहीं पूछता उसके बारे में। तो वो जो रबर रिंग थी वो क्या थी, वो उसके लिए नहीं लाया था बैठने के लिए। उस रबर रिंग के अंदर क्या था, उसके अंदर ब्लड था। ब्लड अगर आप लेकर आएंगे तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। अब उसको क्लॉटिंग से रोकने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 or 3 hours, what have to be done? There is the mind of the scientific also. Evans was very clever. He used his scientific mind to make a plan of bringing blood into the prison. How can the so much blood can be come into the prison? कैसे लाया जा सकता है? It was not easy. But with the help of this rubber tube, this blood was brought into the cell.
तो अब उस ब्लड को कैसे लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, उसके लिए उस ब्लड के अंदर 3.8% जो था ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया गया था, और उसके साथ साथ उसमें रियल ह्यूमन बीइंग्स ब्लड को भी मिक्स किया गया था, सो दैट द ब्लड कुड नॉट बी क्लॉट, ओके, क्लॉटेड नाउ। एंड फ्रॉम वेयर ही गॉट द ब्लड, कहाँ से उसको ब्लड मिला? The blood, he found the blood from the slaughter house. slaughter house जो होता है जिसे हम कहते हैं कसाई बाड़ा, वहां से उन्होंने पिग का ब्लड लिया, पिग्स ब्लड फ्रॉम slaughter house of Kidlington, brought in small semi inflated rubber ring. So this was the arrangement of the blood to bring into the cell. ये अरेंजमेंट था सेल के अंदर ब्लड लाने का और उसको लिक्विड फॉर्म में रखने का। डिटेक्टिव, एंड दिस इज द कार ऑफ डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, ये उसकी कार है। अब एग्जाम ओवर होने के बाद क्या होता है कि स्टीफंस जो है वो मैक्लरी को गेट तक ड्रॉप करने जाता है, क्योंकि जैक्सन भी कुछ नहीं कह पाता, उनके हिसाब से तो गवर्नर के ऑर्डर है, जबकि वो गवर्नर नहीं था, वो इवेंट्स का ही कोई कौन था, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि किससे मिला हुआ था? इवेंट्स से मिला हुआ था। सो अब क्या होता है, जो मैक्लरी गया है, व्हेन एवर ही वाज गोइंग टू द गेट विद मैक्लरी, देन स्टीफन नोटिस समथिंग। व्हाट डिड ही नोटिस? वो नोटिस करता है कि द हेयर ऑफ द मैक्लरी वाज क्रॉप्ड विद द स्कैल्प, नियर द स्कैल्प से बहुत छोटे छोटे बाल उसके कटे हुए हैं, और वो जो था थिन, ही वाज लुकिंग सम थिन रेदर देन बिफोर, पहले से ज्यादा पतला नजर आ रहा है, और उसका ओवरकोट भी जो था वो नीचे से अब नीचे जा रहा था, जबकि पहले वो ऊंचा था जब वो एंटर किया था। ऐसा क्यों था मैं यहीं पर बता दे रही हूँ, चैप्टर में तो बहुत एंड में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैक्लरी 2 कोट पहन कर आया था, तो एक कोट निकालने के बाद वो थिन हो गया, और उसकी जो कोट की हाइट थी वो जो नीचे वाला था वो लॉन्ग हो गई। तो ये रीजन था जो उसने नोटिस किया था। स्टीफेंस गलत नहीं था, बट उन्होंने अपने उन शक को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। फिर उसके बाद जब वो वापस आता है, वो सेल में एक बार चेक करना चाहता है कि इवेंट्स जो है ठीक है, कोई अंदर गड़बड़ तो नहीं है। अभी तक वो खुश था कि एग्जाम बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। सो अंदर जाकर देखता है कि इवेंट्स की चेयर पर मैक्लरी, अभी वो सब क्या समझ रहे हैं, मैक्लरी, इवेंट्स की चेयर पर मैक्लरी जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ब्लड है, ठीक है, पूरा वो ब्लड से। देखिए जब कहाँ किसी की चोट लगती है, किसी को मारा जाता है, तो ब्लड जो है उस जगह से जहाँ पर घाव हुआ है, जहाँ ही वॉज हिटिंग, ब्लड फ्लो फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ से फ्लो करता है और उसी साइड को पूरे को गीला करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैक्लरी जेल सेल के अंदर पाया गया चेयर के ऊपर, वो पूरे का पूरा ब्लड से, मतलब उसके बाल भी पूरे ब्लड से एकदम सन गए थे, उसकी आईब्रोज, बियर्ड, सब कुछ। तो उसकी वजह से वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया कि हु इज दिस वन, मैक्लरी और इवेंट्स। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ देयर प्लान, वो उनके प्लान, योजना का एक पार्ट था कि उसको पूरा मतलब घायल अवस्था में दिखाना है। तो इस तरीके से ब्लड, और वो ब्लड क्या किया गया था, पोर किया गया था, ऊपर से उड़ेला गया था। तो सोचने की बात यहाँ थी कि उस समय जब उसको नोटिस किया गया तो ये चीज़ नोट की जानी चाहिए थी कि इस तरीके से ब्लड कैसे निकला है। तो उन्हें लगा बहुत ज़्यादा उसके चोट मार गया है, इवेंट जो इसको मारकर भाग गया है जेल से बाहर। तो उस समय पूरी जेल में जो है वो एकदम चिल्लाता है। पहले जैक्सन को बुलाया जाता है, फिर जैक्सन गवर्नर को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद जेल में और आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी जाती है फॉर द एस्केपिंग ऑफ द प्रिजनर। And then detective Carter was called, called by गवर्नर के द्वारा उसको बुलाया जाता है। वो अपनी पुलिस वैन में बैठकर आते हैं। नेक्स्ट इवेंट सर्च ऑन एंड ड्रॉप्स इंजर्ड मैक्लरी, और इसी कार में जो है कार्टर जो है उस मैक्लरी को जो घायल अवस्था में है उनको कहाँ ड्रॉप करते हैं, इंजर्ड मैक्लरी को नियर एग्जाम बोर्ड ऑन एल्सफील्ड वे। एल्सफील्ड वे पर एग्जामिनेशन बोर्ड के पास ही
एक वो था हॉस्पिटल था रेडक्लिफ हॉस्पिटल, जहाँ एम्बुलेंस उसको लेने आती उसके पास स्पॉट पर, मेन वहाँ हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा था, एक जगह पर जहाँ पर उसको छोड़ा था, जहाँ से एम्बुलेंस उसको मतलब रिसीव करती, उनको ड्रॉप कर देते हैं इस वैन से। सो दिस इज अ एम्बुलेंस एंड रेडक्लिफ हॉस्पिटल। ये एम्बुलेंस जो है रेडक्लिफ हॉस्पिटल से वहाँ गई थी जहाँ पर मैक्लरी को ड्रॉप किया गया था, लेकिन जब ये एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है तो मैक्लरी वहाँ नहीं मिलता। मैक्लरी जो घायल अवस्था में था वो वहाँ से भाग चुका था। So ambulance supposed to pick injured McClary but Evans impersonated as McClary slips away। तो वो कौन था जो मैक्लरी की रूप में बाहर लेकर आए हैं? इवांस था वो, जो घायल अवस्था में था, जिसे अभी तक सब लोग ये सोच रहे थे कि ये मैक्लरी है। मैक्लरी को इवांस मारकर मतलब उसको घायल करके हर्ट करके वो मैक्लरी के रूप में दाढ़ी वगैरह लगाकर स्पेक्स पहनकर वो जेल से बाहर भाग गया है। तो उन्होंने मैक्लरी को अब यहाँ पर ये वैन है और ये हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर मैक्लरी नहीं मिलता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो दिस वॉज द प्लान ऑफ इवेंट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इस अब जो है वो प्रिजन से खुद सम्मान के साथ किसके द्वारा लाया गया? जैक्सन, स्टीफेंस, गवर्नर कार्टर एंड इंस्पेक्टर बेल। तो भागा नहीं है वो, देखिए उसकी प्लानिंग योजना देखिए कितनी क्लेवरली उसने बनाई है कि वो किसी भी कैदी की तरह नहीं भागा, एक चोर की तरह बड़े सम्मान के साथ उसको बाहर लाया गया। और उस प्लानिंग के दौरान अब वो यहाँ से वो भागा है। जब इवांस भागता है तो वो लास्ट मतलब खुश, किस तरीके से खुश हुआ ये उसका लास्ट लाफ दिखाते हैं। एंड में भी वो एक बार गवर्नर की तरफ हंसता है। ऑन वन लाइन समरी, अब इस चैप्टर की समरी क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज अ क्लेवर एस्केप प्लान्ड बाय अ convict on the presence of taking a language exam in the prison. The convict, even after being caught, still has the last laugh and makes his escape. इवेंट्स यहाँ से तो भागता है, लेकिन यहाँ से भागने के बाद वो क्या करता है कि वो एक मार्केट में जाता है, सेंट्रल मार्केट। वहाँ पहले अच्छा जो वैन थी वो वैन में जाकर अपने आप को चेंज करता है, अपने वॉश वगैरह करता है, जो ब्लड था उसको साफ कर कपड़े चेंज करता है, मार्केट से जाकर कुछ खाना पीना खाता है, वहाँ पर एक नई कैप खरीदता है। उसकी जो बियर्ड थी, उसने फॉल्स बियर्ड लगाई थी, उसकी वजह से उसको ईचिंग हो गई थी, बाल उसको अपने ब्लेड से छोटे छोटे काटने पड़े थे मैक्लरी की जैसे, जिसके लिए उसने नई हैट खरीदी उसको कंसील करने के लिए। वो वहाँ से होटल जाता है, कौन सा? गोल्डन लायन होटल। और ये गोल्डन लायन होटल की जो इन्फॉर्मेशन है उस करेक्शन स्लिप के द्वारा उसको दी गई थी। वहाँ पर जैसे ही वो गेट खोलता है, अंदर जाता है, तो उसे उस होटल के अंदर उसके बेड पर कौन मिलता है? गवर्नर मिलता है। गवर्नर से वो पूछते, पहले चौंक जाता है और सोचता है कि अब वो पकड़ा गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर गवर्नर से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तो उसने कहा करेक्शन स्लिप। कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ पर वो अपनी सारी योजना जो है गवर्नर उससे पूछता है प्लानिंग की, तुमसे कभी मतलब इस बात का स्पेशल ध्यान रखा गया था कि कोई तुम्हें ना देख पाए, लेकिन तुम वहाँ से भागे कैसे? तो उसने बताया कि जो जर्मन टीचर था वो मतलब मुझसे मिला हुआ था। क्या आपने कभी उसका ऑथेंटिकेशन कार्ड चेक किया कि वो कहाँ से है? वहाँ पर गवर्नर को अपनी गलती का एहसास होता है, मतलब जितनी गलतियाँ उसने की थी उन सब का एहसास होता है। और वो इवेंट से कहता है कि हम रोज कैदियों से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, आज तुमसे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। फिर वो उसे लेकर बाहर आते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि गाड़ी रेडी है। प्रिजन वैन सामने तैयार थी, जिसमें कि हैंडकफ्स लेकर हथकड़ी के साथ प्रिजन ऑफिसर्स तैयार थे। और वो उसको इवांस को जो है अपने साथ बैठा, इवांस जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है वो उसको हथकड़ी लगाते हैं और उसके बाद इवेंट्स उनको गुड बाय कहता है। और गवर्नर भी ऐसे उसको सी ऑफ कर रहे हैं जैसे वो किसी कॉकटेल पार्टी से किसी अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर बैठता हो, कार स्टार्ट होती है, जो उसके अंदर प्रिजन ऑफिसर बैठा हुआ था वो उसके हैंडकफ्स को खोल देता है, हथकड़ी को खोलता है और इवेंट्स उसके बाद बड़े रिलैक्स के साथ सीट पर बैठता है और लास्ट बार गवर्नर की तरफ मतलब उस
हंसी बनाते हो उसके, एक मतलब इस तरीके की स्माइल पास करता है कि उसे एक बार फिर से उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया और फाइनली वो वहाँ से फिर से एस्केप हो जाता है। ही ऑल्सो एस्केप्ड 5th टाइम फ्रॉम द प्रिजन इन फ्रंट of before the eyes of the governor. So this was the story Evans tries an O-level exam. Thank you student. I think each and every point have been clear to you, and there is need a lot of things to know about this chapter, so you have to read it deeply. Thank you and have a nice day.